Hello students, welcome to the next video of operation subject operation research. In our today's video we will solve the numericals based on simplex method. So let us see one example. We need to solve this example using simplex algorithm or simplex method. Our problem is we need to maximize z equals to 23x1 plus 32x2. Now, the constraint subjected to are 10x1 plus 6x2 equals to 2500, 5x1 plus 10x2 equals to 2000, and last constraint is x1 plus 2x2 is equal to 500, where x1 and x2 are always greater than 0, which are non-negativity constraints. Now let us recall the algorithm of simplex method. So our first basic step is to assume slack variables. As it is a case of maximization, so we need to assume slack variables. So here we can see that there are three constraints: equation 1, 2 and 3 are right. So we'll have three slack variables, namely s1, s2 and s3. Now let us write our objective function as z equals to 23x1 plus 32x2 plus 0s1 plus 0s2 plus 0s3. Our equations. For first equation we'll write one slack variable. For next equation we'll have another slack variable, and for third equation we have third slack variable. So we'll write our equation like this: 10x1 plus 6x2 plus 1s1 is equal to 2500, and 5x1 plus 10x2 plus 1s2 is equal to 2000, and our last equation becomes x1 plus 2x2 plus 1s3 is equal to 500. After doing that, our next step is to tabulate the whole equations. So for tabulating the whole equation, we'll write our objective function CBI, and the function is denoted by Cj. We'll first draw this table. So at the top left corner we'll write CBI, then after Cj, which splits into another row, namely basic variable. I'll tell you that what is basic variable and what this table explains. So after writing this, we have total number of two variables, and we had considered, due to three equations, we had considered three slack variables, and our final answers are also given to us, which is in the form of 2500, 2000 and 500. So we'll write the solution of a problem, right? And in last column, if we will find that Zj minus Cj is less than equals to 0, so we will have the replacement model to find the key row. तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि भाई की रो और की कॉलम है क्या. सो की कॉलम ऐसा कॉलम है जिसमें हमें मोस्ट नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर करना है. आफ्टर डिवीजन मोस्ट नेगेटिव वैल्यू से यहाँ पे -32 है, तो ये जो हमारी वैल्यू बनेगी वो हमारी की कॉलम की वैल्यू बनेगी, और की रो वो वैल्यू होगा जिसमें हम रिप्लेसमेंट मॉडल को मिनिमाइज, सबसे मिनिमम जो वैल्यू होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे. सो एज वी नो दैट अवर minimum value
can be written by x IR divided by AIR. So here you can understand this 200 is a minimum value which forms the key row for entire matrix or entire table. अब स्टार्ट कैसे करना है वो मैं पहले आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको cbi फंक्शन लिखना है, उसके बाद आप cj राइट करोगे। cj राइट मींस दिस it contains the coefficient of objective function z, right? Again, what we had considered, as we have three equations, equation 1, equation 2 and equation 3 with two different variables x1 and x2, so we'll write x1 and x2 and whatever the variables we had assumed, तो हमने तीन वेरिएबल कंसीडर किए हैं, s1, s2 और s3 को कंसीडर किया है, ठीक है। तो एज इट इज इक्वेशन में जो दिया है वही हमें वापस लिख देना है। तो चलिए हम लिखते हैं। सबसे पहले you need to draw this table। वहां पर आपको एक्सट्रीम लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे लिखना है CBI, उसके बाद CJ कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन z, उससे नीचे हमें लिखना है बेसिक वेरिएबल। बेसिक वेरिएबल्स आर दोस वेरिएबल्स व्हिच वी हैड इंक्लूडेड इन प्रॉब्लम। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, तीन बेसिक वेरिएबल्स लिए हैं, s1, s2 और s3, तो वो हम लिख देंगे। आफ्टर राइटिंग दैट फिर क्या करना है, हमें कंसीडर करना है ये तीन वेरिएबल लिखने के बाद एक जो सॉल्यूशन का टेबल है, सिंपली हमें उसका एंड सॉल्यूशन वो लिखना है, ठीक है। और उसके बाद विल हैव द रेशियोज ऑफ टू वैल्यूज। चलिए तो फिर देखते हैं हमें कैसे राइट करना है। यहां पे जो CB की वैल्यू है, तो हमारा फर्स्ट कोएफिशिएंट x1 का कोएफिशिएंट है 23, x2 का कोएफिशिएंट है 32, x1 का कोएफिशिएंट है 0, s2 का कोएफिशिएंट हमको दिया है 0 एंड s3 का कोएफिशिएंट हमारे पास 0। तो सबसे पहले हम कोएफिशिएंट लिख देंगे सारे 23, 32, 0, 0, 0। अब ये जो कोएफिशिएंट है किसके, तो बेसिक वेरिएबल्स हमारे पास कौन कौन से हैं, सो वी हैव टोटल 5 वेरिएबल्स x1, x2, s1, s2 and s3। we'll write in our table form। सेम बेसिक वेरिएबल को हमें यहां लिखना है, तो हम लिखेंगे s1, s2 एंड s3 और उसकी जो CPI वैल्यू है, उसकी जो वैल्यू दी है वो हमने क्या एज्यूम किया है, 0 एज्यूम किया है, तो वो हम वापस लिख देंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन में हमें क्या करना है, जैसे हमारा फर्स्ट इक्वेशन है इट हैव 10x1, तो हमारा जो कोएफिशिएंट है वो हम लिखेंगे, देन 6x2, so we'll write the coefficient here 1s1, 1s1, we don't have any s2, so we'll write 0 there, we don't have any s3, so we'll write 0 there, right। इसी तरह से हमें पूरा टेबल फॉर्म करना है। तो नेक्स्ट उसमें हमें आ जाएगा, नेक्स्ट जो रो बनेगी हमारी वो बनेगी 5, 10, 0, 1 एंड 0। और जो थर्ड रो बनेगा x3 के लिए, तो 1, 2, 0, 0 एंड फाइनली वी हैव 1, ठीक है। अब हम zj के वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का है उसका वैल्यू हमें कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसका बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, अवर zj इज इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ CBI इनटू AIJ। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट हमें करना कैसे है वो हम समझ लेते हैं। तो फर्स्ट उसके लिए हम कंसिडर करेंगे CBI इनटू AIJ का वैल्यू। तो यहां देखो, फर्स्ट हम कंसिडर करेंगे द 0 एंड x1 10 प्लस 0 इनटू 5 प्लस
0 इंटू 1। तो हम अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो Zj इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 0 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जो हमारा Zj का वैल्यू है। तो फर्स्ट रो के लिए हमने लिख दिया Zj इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम के लिए हमने लिख दिया द वैल्यू इज 0। अब हम नेक्स्ट कॉलम के लिए फाइंड करेंगे। सो नेक्स्ट कॉलम है हमारा x2। तो अब हम x2 के लिए फाइंड करने जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 0 इंटू 6 प्लस 0 इंटू 10 प्लस 0 into 2 which gives you the value 0. Similarly for third we'll have the value 0 over here, we'll get the value 0 और x3 के लिए हमें वैल्यू मिलेगा 0। सिमिलरली जब इसका प्रोडक्ट 2500 के साथ होगा, 2000 के साथ होगा और 500 के साथ होगा, आफ्टर सम अप we'll have the value 0, right? तो हमें यहाँ पर इतना करने के बाद क्या करना है, तो इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे Zj माइनस Cj। तो अभी अपना Zj का वैल्यू कितना है, इट इज 0। So first column it is 0 and what is the value of Cj? So it is 23. It is 23. So will 0 minus 23 will give you minus 23. Similarly 0 minus 32 कितना देगा आपका आंसर, minus 32। 0 minus 0 will have 0, 0 minus 0 will have 0, 0 minus 0 again will have 0 value। तो आई होप यहां तक आपको पता चला होगा Zj minus Cj को कैसे कैलकुलेट करना है। तो भाई जो Zj की वैल्यू आई है उसमें से हमें Cj की वैल्यू को माइनस कर देना है, डिडक्ट कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद जो आंसर मिलेगा उसे हम लिख देंगे Zj माइनस Cj। अब हम एक और चीज कंसीडर करेंगे कि भाई हम देखेंगे सबसे मोस्ट नेगेटिव, क्या देखना हमें, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ Zj माइनस Cj। सो द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू यहां पे आपको क्या दिखाई देगा, सो इट इज माइनस 32, राइट। सो इट बिकम्स, ये जो चीज है इट बिकम्स योर की कॉलम। तो इस चीज को हम अपना की कॉलम बना लेंगे। तो ये बन गया हमारा की कॉलम। अब हमें इस तरह से की रो भी फाइंड करना है। तो की रो फाइंड करने हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, द रेशियो ऑफ मिनिमम XIR डिवाइडेड बाय AIR, राइट। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारी जो की कॉलम हमें मिली है उसमें क्या वैल्यू मिली है हमें, 6, 10 एंड 2। सो विल डिवाइड आवर सॉल्यूशन B, ये जो B पॉइंट है, ये जो सॉल्यूशन का पॉइंट है उसको हम इस की कॉलम से डिवाइड करेंगे। सो 2500 डिवाइडेड बाय 6 will give you 416.7। 2000 डिवाइडेड बाय 10 वो कितना देगा हमें, 200 वैल्यू देगा। और 500 डिवाइडेड बाय 2 वो कितना देगा हमें, 250 देगा। नाउ भी हमारा लिखा गया है कि we need to have minimum of that। सो इसमें सबसे मिनिमम कौन सा है, यस इट इज 200। तो अब ये जो 200 है वो अपना बन जाएगा की रो। फिर से एक बार समझें, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू वो आपका की कॉलम देगा और रिप्लेसमेंट रेशियो में सबसे लोएस्ट रेशियो जिसका होगा वो आपको की रो देगा। इट इज योर की रो, ठीक है।
अब हमारा जो की रो और की कॉलम है उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इट विल गिव यू की एलिमेंट। तो ये बन जाएगा हमारा की एलिमेंट। So this is how we are able to calculate key row and key element, right? So here 10 will be our key element, it is our key column, and this will becomes your key row. अब हम एक और चीज देखेंगे, एंट्री और एग्जिट वेरिएबल, एंट्री वेरिएबल और लिविंग और एग्जिट वेरिएबल, उसको समझेंगे। यहां पे अगर हम देखें, सो द मोस्ट नेगेटिव कॉलम इज -32, राइट? तो ये हमारी बन जाती है की कॉलम। ये जो की कॉलम की वैल्यू है वो किसकी वैल्यू बता रही है हमें? x2 की वैल्यू बता रही है, राइट? सो दिस वैल्यू बिकम्स अवर एंट्री वेरिएबल। दैट मींस एंट्री वेरिएबल, दैट मींस अ वेरिएबल व्हिच रिप्लेसेस द सेम अनदर वेरिएबल। अब वो किसको रिप्लेस करेगा? तो रिप्लेस यहां पर हम देखेंगे कि की रो हमारा s2 वेरिएबल है, ठीक है? तो हम s2 को रिप्लेस करेंगे x2 के साथ में। सो विल राइट x2 in place of s2, ठीक है? अब x2 की वैल्यू सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे। ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है? तो उसके लिए हम विद सेम रो को हम, हमारा जो की एलिमेंट है, से our first variable is 5 which is divided by key element 10। तो हम इसको डिनोट कर सकते हैं की एलिमेंट टू बी 0 divided by key element। तो सबसे पहले रो में हमारा 5 आता है, ठीक है? उसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 10 से डिवाइड करेंगे। सो विल हैव 0.5, वो हम लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाय 10 which gives you 1, तो हम वो लिख देंगे 1। देन 0 divided by 10 will give you 0। Again 1 divided by 10, तो हमें क्या देता है सॉल्यूशन? 0.1। एंड फाइनली this 0 divided by 10 will give you 0 value. After that, if you will divide 2000 by 10, then it will give you 200. So this is how our entry variable enters in table. अब इसके बाद और समझें, एंट्री वेरिएबल हमने कैलकुलेट कर लिए। एंट्री वेरिएबल कैलकुलेट करने के बाद बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे कैलकुलेट करना है? सो फॉर दैट वी हैव वन इक्वेशन which indicates that new element equals to old element minus product of corresponding key row and corresponding key column divided by key element। अब हम इसको थोड़ा समझ लें। यहां पे जो हमें न्यू वेरिएबल, जो न्यू एलिमेंट बनाना है, वो कैसे बनाना है? तो फॉर दैट वी हैव इक्वेशन। उसके लिए हमारे पास इक्वेशन क्या है कि न्यू एलिमेंट इज इक्वल टू ओल्ड एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ corresponding key row into key column element divided by key element। तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर key element is 10 which remains fixed, वो हमें फिक्स लेना है, ठीक है? अब ये हमारे जो न्यू एलिमेंट बनाने हैं तो वो कैसे बनाने हैं? तो हमें पता है कि न्यू एलिमेंट फाइंड कर लेने के हमारे पास फार्मूला क्या है?
न्यू एलिमेंट इज इक्वल टू ओल्ड एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग की कॉलम एंड की रो डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। अब ये जो की एलिमेंट है और ये जो रेशियो है वो हम फिक्स ले सकते हैं। वो हम कैसे फिक्स ले सकते हैं वो हम देखते हैं। दिस रेशियो, ये रेशियो क्या बताता है हमें? इट इज द रेशियो ऑफ की कॉलम एलिमेंट व्हिच वी नीड टू मेक जीरो। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो x2 है वो की कॉलम है, तो हमें क्या बनाना है? इसको जीरो बनाना है। तो इसको जीरो बनाना है तो ये एलिमेंट हो गया हमारा की कॉलम एलिमेंट which needs to be made zero. Next is divided by key element. Now what is key element? So it is 10. So 6 divided by 10. हमने इसको फिक्स कर लिया। So it is 6 divided by 10. 6 divided by 10. अब हम करस्पॉन्डिंग की रो के बारे में जानेंगे। तो की रो हमारे पास है क्या यहाँ पे? So the values are 5, 10, 0, 0, 0 and 2000. So we'll write all those value. We'll write 5, 10, 0, 1, 0 and 2000. After that we'll solve it. तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? So it is 10 minus 3 is equal to 7. ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 6 minus 6 is equal to 0. It is 1 minus 0 which is equals to 1. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट जो एलिमेंट बनाया हमने 7, then 0, then 1. और नेक्स्ट एलिमेंट इज 0 minus 0.6 which is equals to minus 0.6. It is 0 minus 0 is equal to 0 and और सॉल्यूशन वेरिएबल जो सॉल्यूशन में मिलेगा वो क्या हो जाएगा हमारा? सो इट इज 2500 माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे सो इट इज 1200 व्हिच गिव्स यू द वैल्यू 1300। तो इस तरह से हम f1 के लिए बेसिक वेरिएबल के लिए सारी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे? थर्ड एलिमेंट के लिए विल अप्लाई द सेम फार्मूलाज। सारे फार्मूला सेम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए जो हमारा रेशियो बनेगा तो हम यहाँ पर रेशियो देखते हैं। की कॉलम हमारी ये है तो की कॉलम का एलिमेंट कौन सा एलिमेंट जीरो बनाना है? सो वी नीड टू मेक 2 as 0। इसको हमें जीरो बनाना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 6 की जगह 2 प्लेस कर देंगे एंड वी नो दैट आवर की एलिमेंट इज 10, so we'll write 2 by 10 and that's how we'll calculate all the values of the row S3 which gives you the value 0. 0 कैसे आ रहा है? Same method, we'll put old value minus bracket closed 5 into क्या रखोगे? 2 by 10। हाँ 6 by 10 की जगह आप 2 by 10 रखोगे और की रो तो आपके पास सेम ही रहने वाली है, ठीक है। तो इस दैट्स हाउ वी आर एबल टू हैव विल मेड दीस वैल्यू एज 0। अब नेक्स्ट हम करेंगे zj कैसे कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है zj इज इक्वल टू है क्या? इट इज समेशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट ऑफ cpi इनटू aij, ठीक है। तो अब करते हैं हम 0 into 7, 0 plus 32 into 0.5। हम देख लेते हैं एक बार। 0 into 7, 0 into 7 plus 32 into 0.5 plus 0 into 0, so we'll have the answer 16 over here। यहाँ पे हमें 16 मिलेगा, हमने लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट इसके लिए we'll multiply this with this, so 0 into 0 plus 32 into 1 plus 0 into 0, so we'll give you the answer 32।
इसी तरह से सारे इटरेशन सॉल्व करना है। सो विल हैव द वैल्यू ऑफ Zj, वो हमें मिलेगी 16, 32, 0, 3.2 एंड 0। नाउ अवर फाइनल नेट इवैल्यूएशन फार्मूला वो क्या है? तो Zj माइनस Cj। तो यहाँ पर Zj माइनस Cj क्या रहेगा? Zj 16 minus 23, so we'll give you minus 7, 0, 32 minus 32, so we'll give you 0, 0 minus 0 will give you 0, 3.2 minus 0 will give you plus 3.2, और यहाँ पे हो जाएगा 0 minus 0 gives you 0। तो अभी तक हमने देखा कि मोस्ट नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे हमारी -7 आई, ठीक है। अभी जो -7 आई तो ये हमारा हो जाएगा की कॉलम, ठीक है। फिर हम क्या कैलकुलेट करेंगे? रेशियोज कैलकुलेट करेंगे। तो रेशियो आप जैसे ही कैलकुलेट करोगे की कॉलम से कि भाई सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय की कॉलम, सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय की कॉलम एंड सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय की कॉलम, सो विल हैव द रिप्लेसमेंट रेशियो, हमें वहां से मिल जाएगा रिप्लेसमेंट रेशियो। तो हम जब 1300 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे सो वी विल हैव 185.7। यहां पे आप 200 डिवाइडेड बाय 0.5 करोगे व्हिच गिव्स यू द वैल्यू 400 एंड 100 डिवाइडेड बाय 0 वो आपको क्या दे देगा? इंफिनिटी, राइट। तो हमें इंफिनिटी तो कंसीडर करना नहीं है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है उसे हम कंसीडर करेंगे नहीं। तो अब हम इसमें से सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है वो देखेंगे। सो 185.7 इट इज आवर मिनिमम वैल्यू। तो वो जो रो बनेगी वो हमारी की रो बनेगी, ठीक है। तो अब की रो के सामने S1 वेरिएबल है, सो दिस वेरिएबल इज लिविंग वेरिएबल, इट इज आवर लिविंग वेरिएबल। ये टेबल में से बाहर निकल जाएगा और इसकी जगह आएगा कौन? तो जो की कॉलम का एलिमेंट है, जो की कॉलम का वेरिएबल है वो इसकी जगह ले लेगा। तो हम नेक्स्ट टेबल में यहां देखेंगे कि भाई x1 की जो वैल्यू है, ठीक है, x1 जो है वो s1 को रिप्लेस करेगा। यहां पे s1 को रिप्लेस करके x1 रखेंगे और जो cj की वैल्यू, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू है वो हमारी x1 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज, अब हमारे पास की कॉलम आ गई है, की रो आ गई है और की एलिमेंट आ गया अपने पास, ठीक है। यहां पे हमारे पास की एलिमेंट भी आ गया है जो है 7। तो सबसे पहले जैसे लास्ट उसमें किया था इटरेशन में, इस इटरेशन में भी हम वही सेम मेथड यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेशियो देख लेते हैं। तो रेशियो इज इक्वल टू की कॉलम एलिमेंट to be made to be 0 divided by की एलिमेंट। तो यहाँ पे हम देखेंगे भाई की कॉलम एलिमेंट कौन सा है हमारे पास? तो ये जो है हमारा की कॉलम एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी होती है? तो हमें पता है की रो के लिए हम क्या करेंगे, की रो डिवाइडेड बाय की एलिमेंट करते जाओगे। जैसे ही आप की एलिमेंट करते जाओगे तो जो आंसर मिलेंगे वो आपके x1 के वेरिएबल के आंसर मिलते जाएंगे। तो यहाँ पे आपको की रो की वैल्यूज मिल गई। अब अपने पास जो नेक्स्ट वैल्यू बची है वो कौन सी बची है? x2 के लिए और s3 के लिए। x2 के लिए अब कैसे सॉल्व करना है? तो सबसे पहले हम रेशियो फाइंड करेंगे। अब ये रेशियो कैसे फाइंड होगा? तो रेशियो के लिए हमें पता है तो एलिमेंट टू बी मेड 0 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। की एलिमेंट 7 है, यहाँ पे हमें किसको 0 बनाना है? तो 0.5 को हमें यहाँ पे जैसा 0 बनाना है, ठीक है। तो इसे 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रख देंगे 0.5 और 1/2 डिवाइडेड बाय 7 which gives you 1/14। अब हमें न्यू एलिमेंट फाइंड करना है। किस एलिमेंट के लिए फाइंड करना है? तो x2 के लिए फाइंड करना है। तो x2 की जितनी भी वैल्यू है 0.5 1 0 0.10 2 0 200 वो हम सिंपल लिख लेंगे 0.5 1 0 0.10 0 एंड 200 ये आपने लिख लिया। अब उसके बाद ये जो रेशियो है
उसे हम मल्टीप्लिकेशन माइनस करके उससे मल्टीप्लिकेशन करना है, और ये जो वैल्यू है वो कहां से आती है, तो हमें पता है वो हमारी कौन सी वैल्यूज है, तो की रो की वैल्यूज है। तो आप लिखोगे 7 0 1 0.6 minus 0 and 300। ठीक है, सो इट इज हाउ वी आर एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x2 आल्सो। तो हमें वहां से x2 के लिए वैल्यू भी मिल जाएगा। मिलेगा क्या मिलेगा हमें, 0 1 minus 0.07 0.143 0 and 107.14। S3 के लिए सेम मेथड अप्लाई करोगे आप, तो आपको वैल्यूज मिलेगी 0 0 0 minus 0.5 1 and 100। अब हमें zj फंक्शन कैलकुलेट करना है, तो zj कैसे कैलकुलेट करोगे, सो zj के लिए हमें वहां पता है कि दिस 23 into फर्स्ट एलिमेंट 1 plus 32 into 0 plus 0 into 0, तो वो आंसर आ जाएगा हमारे पास 23। नेक्स्ट के लिए करेंगे 23 into 0 plus 32 into 1 plus 0 into 0, तो वो हमें आंसर देगा 32। बाय अप्लाइंग सेम मेथड s1 s2 s3 के लिए फाइंड कर लेंगे। फाइनल ऑब्जेक्टिव नेट इवैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, सो फॉर दैट वी हैव फार्मूला zj minus cj। सो नेट इवैल्यूएशन कैलकुलेट करने के लिए आप zj minus cj करोगे, you will have 0 32 minus 32 again 0 1.04 minus 0 2.6 minus 0 0 minus 0। ठीक है, तो that is how you will be able to calculate or tabulate this table। तो अब हम देखेंगे कि मैक्सिमम, तो अब हम देखेंगे आप मैक्सिमम प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज किया जा सकता है। सो विल मल्टीप्लाई 23 into 185.7, राइट, एंड प्लस we will multiply 32 into 107.14, so plus we will multiply 0 into 100। तो हम क्या करने वाले हैं, ये जो वैल्यू है 185.7 into 23 plus 32 into 107.14 plus 0 into 100, तो फाइनल आंसर हमको मिलेगा 7699.58, which is approximately taken to be 7700, which is the maximum optimal value of our objective function z। Thank you for watching video.